Very good morning, my dear students. How are you? I hope you all are fit and fine and also safe at your home. Dear students, today we will read chapter number 4 on page number 49. Our heading is The Voice of Our Conscience. The Voice of Our Conscience. That is written by Munshi Premchand. First of all, try to understand the heading of this chapter, the voice of our conscience. Voice, आवाज. Conscience जो हमारी inner voice होती है. Clear? In this chapter, we will read the voice of the conscience of two person. Means in इस chapter में जुम्मन शेख and also अलगू चौधरी उनकी कॉन्साइंस के बारे में रीड करेंगे कि कैसे उन्होंने अपनी जो इनर एबिलिटी थी, इनर वॉइस थी, उसको फॉलो किया. क्लियर? इट्स अ मॉरल चैप्टर. हमें लाइफ में कभी भी ऐसे नहीं सोचना चाहिए कि शी इज़ माई फ्रेंड, ही इज़ माई फ्रेंड एंड शी इज़ ऑलवेज राइट. नो, ऐसे नहीं कि वो मेरा फ्रेंड है, मैं इसका ही साथ दूंगा, बी इट राइट और रॉन्ग, भी चाहे वो गलत हो चाहे वो सही हो. नो, प्लीज़ लिसन यूर वॉइस ऑफ योर इनर पावर. आपने अपनी जो आत्मा है, कॉन्साइंस है, उसकी आपने आवाज़ सुननी है. क्लियर? एंड ऑल्सो ऑलवेज अडॉप्ट द गुड पाथ. ओके. Munshi Premchand was an Indian famous writer for his modern Hindu-Urdu literature. He is one of the most celebrated writers of the Indian. He wrote under the pen name Nawab Rai and later started writing under the name of Premchand. Clear? Let's read the story. Now read the story that revolves around the enduring bond of friendship between Juman Sheikh and Alagu Chaudhary. In this story, there are two friends and their names Juman Sheikh and Alagu Chaudhary. It is true that two friends that the author Munshi Premchand shows the judgment in and impartiality of the existing rural administrative and judicial system known as Panchayat. I think as you know very well about the Panchayat, in every village there is a Panchayat. हर विलेज में पंचायत होती है. And everyone follows his or her supreme power. Means जो उसके rules and regulations होते हैं, जो उसके means जो भी decisions होते हैं, उसको मानते हैं. पंचायत किसके लिए होती है? मीन्स जो भी विलेज में प्रॉब्लम्स होती हैं उनको सॉल्व करने के लिए. द वॉइस ऑफ आवर कॉन्साइंस. वी विल रीड द स्टोरी इन डिटेल. जुम्मन शेख एंड अलगू चौधरी हैड बीन क्लोज फ्रेंड्स फ्रॉम द चाइल्डहुड. मतलब वो अपने चाइल्डहुड से लेके टिल नाउ दे वर गुड फ्रेंड्स. The two were inseparable and lived close to each other in the same village. They lived in a same village and they were inseparable. Means जैसे कभी भी न दूर हो सको, वो separate नहीं हो सकते because they were close and also good friends. Their friendship was founded on a common outlook and a deep trust in each other. दोनों का एक दूसरे में believe है. Neither any discord nor any rancor ever blemished their friends. ना तो उनकी कोई फ्रेंडशिप में आर्ग्यूमेंट्स है, ना ही कोई बिटरनेस है. क्लियर? जो उनकी फ्रेंडशिप है नीट एंड क्लीन है. एंड अ डीप ट्रस्ट इन ईच अदर. जुम्मन assigned the responsibility of looking after his house and family to Araku when he traveled. अब जुम्मन ने क्या किया? जो सारी उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी वो किसको दी? अलगू को दी. एंड ऑल्सो भी उसकी फैमिली का लुक आफ्टर करे, जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं वो उनको निभाए, फॉलो करे. बिकॉज जुम्मन ऑन ट्रैवलिंग
वो ट्रैवलिंग पे मतलब जा रहा था, तो उसने जो सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज थी वो अपने फ्रेंड को दे दी। अलकू डिड द सेम व्हेन रिक्वायर्ड, उसने वैसा ही किया। जुम्मन वाज अ डीपली रिलीजियस मुस्लिम, जुम्मन किस रिलीजन से बिलोंग करता था? मुस्लिम से। वाइल अलगू वाज अ डिवाउट हिंदू, जो अलगू था वो एक हिंदू था। In spite of many differences in their culture, festivals, food habits, they still remained fast friends as their thoughts were similar. देखो कितने differences हैं। They belong to a different culture, different religions. उनकी जो food habits हैं, festivals हैं, सब कुछ different है, but they were good friends and also their thoughts were similar. The villagers admired the friendship between the two and loved them for it. जो विलेजर्स थे, विलेज के लोग थे, मतलब वो उनकी फ्रेंडशिप को लाइक करते थे। The two had their basic education under the tutelage of जुम्मन's father. जो उनकी एजुकेशन थी, बेसिक एजुकेशन थी, वो उन्होंने कहाँ से गेन की? जो जुम्मन के फादर से गेन की। जुम्मन grew up and became a dependable writer of deeds and agreements. जब जुम्मन grew up हुआ तो वो क्या बना? एक डिपेंडेबल राइटर। द विलेजर्स ट्रीटेड हिम विद रिगार्ड फॉर दिस, जो विलेजर्स थे मतलब बहुत अच्छा ट्रीट करते थे, बिकॉज ही वॉज अ डिपेंडेबल राइटर। अलकू डिड नॉट क्वाइट लूज हिज इन्फ्लुएंस इन द विलेज। देखो मतलब क्या था कि जब जुम्मन था वो एक राइटर बन चुका था, तो सभी जो विलेजर्स थे उसको रिस्पेक्ट देते थे, नॉट अलकू। He was affluent and that got him the prestige and respect before the villagers. जो जुम्मन था अब वो एक राइटर बन चुका था, क्लियर, एक फेमस हो चुका था, तो सभी उसको रिस्पेक्ट देते थे, बिकॉज ही वॉज एन एजुकेटेड पर्सन इन द विलेज। ऑल वेंट स्मूथली अंटिल देयर अरोज अ डिस्प्यूट बिटवीन जुम्मन एंड हिज खाला। उसके बाद क्या हुआ कि जुम्मन और उसके खाला थे, मीन्स ये फादर को बोलते हैं खाला, उनके बीच में एक डिस्प्यूट हो जाता है, फाइट हो जाती है। जुम्मन हैड एन ओल्ड लोनली आंट विद नो वन इन हर फैमिली। जुम्मन के पास कौन था? उनकी एक आंट थी। शी वॉज एन ओल्ड लेडी एंड ऑल्सो लोनली। शी वॉज लकी टू हैव सम प्रॉपर्टी इन हर नेम, मतलब उसके नेम पे कुछ प्रॉपर्टी थी ऑन जुम्मन्स आंट। For her upkeep in her old age, she offered to bequeath her land to Jummon in exchange of food and shelter until her demise. Demise means death. मतलब जो जुम्मन की आंट थी उसकी फैमिली में कोई नहीं था। There were no one in the family of Jummon's aunt, so that's why she decided to give her property टू जुम्मन। मतलब तो वो डिसाइड कर लेते हैं कि वो अपने जुम्मन को प्रॉपर्टी देगी। वाई? फॉर शेल्टर एंड ऑल्सो फूड अनटिल हर डिमाइस, की जब तक उसकी डेथ नहीं हो जाती। जुम्मन एग्रीड एंड द डील वॉज अ ट्रक। जुम्मन एग्री हो जाते हैं एंड द डील वॉज अ ट्रक, जो डील थी फाइनल हो जाती है। द ओल्ड आंट मूव टू जुम्मन्स हाउस। अब ओल्ड आंट कहाँ पे चलेगी? जुम्मन के हाउस में। ऑब्वियसली शी ऑफर्ड हर प्रॉपर्टी टू जुम्मन, वेयर शी वॉज एक्सेप्टेड विद वार्मथ एंड वेलकम, जहाँ पे उसको अच्छे से उसका वेलकम किया जाता है विद रिस्पेक्ट। शी होप दैट शी कुड लिव एंड डाई विद डिग्निटी एंड लव इन द फॉस्टर होम। तो उसको बिलीव था कि जो उसको अच्छा ट्रीट करेंगे, कि जहाँ पर उसकी डेथ होगी, एंड लव इन द फॉस्टर होम मीन्स जो उसका अपना घर था, माइका। द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ लुकिंग आफ्टर द ओल्ड लेडी फेल ऑन जुम्मन्स वाइफ करीमन। अब आंट की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी थी वो किसके ऊपर थी? जुम्मन की वाइफ पे। एज डेज वेंट बाई द वाइफ्स लव फॉर द ओल्ड लेडी बिगेन टू wane. When the days were past, the wife's love regarding the old lady began to wane, means खत्म होना स्टार्ट हो गया था।
She felt the old lady to be unnecessary burden on her means and energy. मतलब उसको ऐसा फील होता था कि ये एक वेस्टेज ऑफ टाइम, वेस्टेज ऑफ मनी है. Predictably, her dislike for the aunt reflected in her behavior towards her. आंट को फील होने लगा कि वो उसको डिसलाइक करते हैं, जो उसके साथ वो बिहेव करते थे उसको क्लियर हो जाता है कि ये उसको लाइक नहीं करते और अपनी फैमिली में उसको रखना नहीं चाहते. द आंट फाउंड द कोल्ड and frosty behavior of Jamman's wife quite upsetting and hurtful while Jamman remained indifferent. अब जुम्मन भी बदल चुका था और उसकी जो वाइफ का बिहेवियर था दैट वॉज टोटली इनडिफरेंट. नाउ द आंट वॉज वेरी सैड एंड अपसेट बिकॉज जुम्मन ऑल्सो रिमेन्ड इनडिफरेंट. बिकॉज अब जुम्मन भी बदल चुका था, उसकी वाइफ का बिहेवियर था दैट वॉज टोटली चेंज्ड. Okay students, I will discuss with you the remaining story of this chapter on tomorrow. Today you will read it very carefully. Thanks. Have a blissful day.